Let's start with the first question. So, the starting compound is reacted with X moles of PCl5 followed by NaNH2 methyl iodide and gives you the final product. The sum of X and Y used is. Now, what is the first reaction? You'll get geminal dichloride. Yes. So, the general reaction is whenever a carbonyl group, whether it's aldehyde or ketone, is reacted with PCl5, the PCl3 takes away the oxygen to form the phosphoryl chloride, and the two chlorines get bonded to the same carbon. That is, you will be getting a geminal dichloride. So अब यहाँ पर the X moles of PCl5 will be consumed based on the functional group present. So there is a ketone as well as aldehyde. Aldehyde. तो X की वैल्यू 2. 2 हो जाएगी. Now here what we get in the product side is two chlorines on the same carbon, and here I have a CH2, then the CH bonded to the Cl2. I'll get a terminal geminal dichloride here and a non-terminal geminal dichloride at the top. Now the reaction with NaNH2, which reaction will be feasible? Formation of an alkyne. Formation of alkyne. So it is the double E2 reaction. E2 elimination होगा 2 बार. Yes. ठीक है. But will we get an alkyne in the ring with respect to the top two chlorides? No, you Because could if get two I double would, bonds though. yeah, but two double bonds accumulated in the ring, is it stable? No, because yeah. साइक्लिक रिंग में ना तो ट्रिपल बॉन्ड अच्छा है, ना दो डबल बॉन्ड्स अच्छे हैं. मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर इज नॉट दैट फेवरेबल. सो इस केस में क्या होगा? देयर विल बी ओनली वन एलिमिनेशन हैपनिंग फॉर द रिंग वाला क्लोराइड्स, बट दिस पर्टिकुलर पार्ट कैन अंडरगो द डबल ई टू Alkyne. एलिमिनेशन. Yeah. एंड यहाँ पे अल्काइन मिल सकता है बिकॉज दिस क्लोरीन Cl2 can take away the H2. So the resultant product via NaNH2 would be the ring will have a double bond with respect to the top dihalide. One chlorine will be retained and the alkyne would be formed at the bottom part. Now, if you look at the alkyne, what type of alkyne is formed? Terminal. Can it react with NaNH2? Yes. Yes, because terminal alkynes के लिए दो चीजें हमेशा Acidic याद रखनी है. H. Acidic nature. Acidic Acidic in and nature. Non, no no BTLC. No BTL. BTLC. Tamil. Yes. So the H of this would be replaced by the Na plus, giving you the acetylate salt. So tell me Yes. how many moles of NaNH2 have been consumed? 3. 4. 4. 4. One for the top elimination, two for the bottom elimination, and one for the terminal alkyne. तो ओवरऑल 4 मोल्स यहाँ पे यूज हुआ है. तो y की वैल्यू 4, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी. आंसर तो b मिल गया है. बट आगे लेट्स फर्दर कंटिन्यू द सीक्वेंस. What will happen when this acetylate will react with the methyl iodide? Ascending series. It will take away Yes. the iodide and then you'll get methyl over here. So it's a famous reaction of converting a terminal alkyne to a Non-terminal alkynes. non-terminal alkyne. So ऊपर वाला part remains as it is, and the bottom part would be, sorry, bottom part would be C triple bond C with a methyl. And that is what the product is already given. We have just justified the sequence. Right? So three very important reactions. The first one is carbonyl with PCl5 giving you a geminal dihalide, followed by the elimination to give you the unsaturated compound, and then the terminal alkyne reacting with the CH3I to give you a non-terminal alkyne, a very, very important reaction. Next, what is the maximum number of products, including stereoisomers, possible when halogen compound 2R, 3R, 2-chloro, 3-phenyl butane undergoes hydrolysis via SN1?
Now सबसे पहले to identify the products, first step. Draw the structure Yes, of the of course, you will reaction. draw the structure. So butane is 4 carbon chain, 2 पे chloro, 3 पे phenyl. Satisfy the valency. You have H3H, H, and H3. Now numbering will be in the sequence from left to right, 1, 2, 3, 4. And 2 का configuration is given to be R. Even 3 ka configuration is given to be R. That's why we call it as 2R, 3R. Now this is undergoing hydrolysis via the SN1 mechanism. मतलब just PPS होगा, just PPS, whether it's water or ethanol or acetic acid, you have to think of SN1. SN1 मतलब you have to follow Racemization, so U-shaped mechanism. U-shape mechanism. So U-shape mechanism में Cl is a good living group. So it will leave the reaction to form a Secondary alkyl, secondary alkyl carbocation. Perfect. which will rearrange for Via benzyl. 1 comma 2 hydride shift. hydride shift. hydride shift and will give you a Secondary, Secondary नहीं नहीं hmm, shouldn't there be H? H2 shift हो No, गया no, ना. sorry. Yeah, tertiary benzyl, tertiary sorry. carbocation. So the 2-degree Right. alkyl carbocation has changed to a 3-degree benzyl Benzyl. carbocation. So this also clears the concept of type of carbocations and their stability. Followed by the attack of water, which will act as a weak nucleophile, and then simultaneously deprotonation भी होगा. And the product formed would be a tertiary benzyl alcohol with the OH here. Correct. Yes. Now, is there any chiral center in the final product? Yes, the second carbon. Yes, the benzylic carbon. And that will have the R and S configurations. So two Yes. stereoisomers from here. Yes. Now the maximum number of products, matlab you have to consider all the products, meaning the Even major the and minor product. minor. Matlab even through the secondary alkyl, if it was attacked by water and deprotonated, it will give you a secondary alkyl alcohol. Yes. Now, how many chiral centers do we see here? 2. Second as well as third. Now, understand this concept. So, how many stereoisomers will you count for this product? 4, right? 4 नहीं करेंगे count. Oh, Now, is what's it the 2 catch because here? that is fixed? Yes, very good. Okay. This third carbon is having a fixed configuration, which is directly taken over here. This configuration is not affected. ये तो R था और R रहेगा, right? But now after the substitution, this chiral is having R or S both. मतलब यहां पर there will be two products formed, RR and RS, so diastereomers. SR. मतलब इसका S के साथ R ले लो, यानी ये डाइस्टीरियोमर्स, यानी द नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स जो काउंट करोगे दैट विल बी 2. only 2. So 2 in the minor and 2 in the major. The total number of maximum number of products formed will be 4. Cool. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, where fixed configuration is not to be considered with respect to the stereoisomerism. Had it not been fixed, मतलब मान लो कोई रिएक्शन से दो नए chiral center जनरेट होते, then the number of stereoisomers counted would be 6. by 6. Two Because new the chiral other 2, centers. yes, नहीं नहीं so नहीं, 4 जनरली and जनरली then पूछ रहा 2 हूँ. of that. Okay, then हाँ हाँ, 4. टोटल आंसर 6 होता, बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर दो नए कायरल सेंटर होंगे देन इट विल बी 4.
and 2 you add, the final answer would be 6. I'm just asking about this part. समझा? Yes, sir. Okay. Next. You have an aryl halide with NaOH followed by hydrolysis, giving you the major product. What will get substituted? And which mechanism is this? SNAR, so fluorine will get substituted. Now, this is a SNAR mechanism. Acha, what is the role of nitro in the SNAR mechanism? It increases reactivity because it is deactivating, so it stabilizes carbon ion. Perfect. And among the aryl halides, of course, the fluoride, chloride, bromide, iodide is the reactivity order in decreasing. Yeah. But the nitro, with respect to the bromine, is increasing the reactivity of the Br in this aryl halide. Yes. So the favorable substitution will not be of fluoride, but will be of bromide. Matlab, here the Br will get substituted by OH with the F remaining as it is. Answer will be B. So, अगर नाइट्रो नहीं होता एंड इफ यू हैव टू कॉम्पिटिटिव हैलाइड्स एंड सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन करना होता देन ऑफ कोर्स नार रिएक्टिविटी के हिसाब से व्हाट वी हैव इज अराइल का फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बट व्हाट्स द कैच ओवर हियर द नाइट्रो हाँ बोलो कोई डाउट है no, I was just confused that because I thought because of you follow this reactivity order, that is why. यस 100%. अगर नाइट्रो नहीं होता तो फ्लोराइड वुड हैव बीन द एक्सपेक्टेड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बट बिकॉज ऑफ द नाइट्रो it stabilizes the carbon ion over here and वो भी पैरा पोजीशन पे है which is very much favorable, right? Yes, yeah. That is why the Br will be favorably substituted. Which of the following carbocations do not undergo rearrangement to give a major product? Is it D? No. Is there first का rearrangement possible? No, Yes. sir. It can, no, यहाँ it can पे take a सिर्फ hydride shift and then it will become into an allyl. करेक्ट बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर फेवरेबल तो ये तो रीअरेंज कर रहा है सेकेंड वाला It's already stable because of resonance. इट्स वेरी स्टेबल कार्बोकटाइन इनफैक्ट ये वाला Lone केस pair, प्लीज multiply. नेवर एवर Yeah. फॉरगेट दिस इज ए विथ अ प्लस सिग्मा बी विथ अ लोन पेयर और अ Lone नेगेटिव pair. चार्ज एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इसको ओपन चेन में अगर मैं लिखूं तो एक और एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सॉरी CH2 plus sigma OH and oxygen पे lone pair. It's a very, very stable carbocation. Remember it, very important. तो वो चाहे वो रिंग में हो ओपन चेन में हो A with a plus sigma B with a lone pair is very stable resonance form. So this is not going to undergo any rearrangement. नेक्स्ट वाला ऑफ कोर्स प्राइमरी से सेकेंडरी रीअरेंज कर सकता है डी वाला परिधि डिड यू कंफ्यूज दिस विथ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल Yeah. कार्बोकटायन Yes. इट्स Yes. नॉट क्योंकि यहाँ पे It बीच is में एक ethyl. और Yeah. CH2 है तो फर्दर अगर ये रीअरेंज करेगा तो यू विल गेट दैट डांसिंग Cyclopropyl. रेजोनेंस Yeah. कार्बोकटायन विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी स्टेबल अगर ये प्लस डायरेक्टली दिया होता तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता बट द प्लस इज एक्सटर्नल पार्ट में एंड इट विल of course undergo the rearrangement. Got it? Yes. Sir. Next is you have the starting compound as a primary amine. And what does primary amine give after reacting with methyl iodide? Excess.
think of the general reaction Rx plus RNH2, Liberate ammonia. I don't know. right? Don't you recollect RNH2 plus XR dash reaction? It will give, Or it matlab, will substitute. yeah, I will get substituted in excess. Correct. So what does it give? But अरे ये tertiary, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन Secondary है, हाउ and कैन यू tertiary फॉरगेट? amine. Yes, yes. मतलब कोई अननोन रिएक्शन नहीं है, ये बहुत फेमस हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस है. तो Yes. प्राइमरी विल चेंज टू सेकेंडरी, सेकेंडरी विल चेंज टू टर्शियरी, विल द टर्शियरी रिएक्ट फर्दर? कहां तक जाता है Yeah, it can become हॉफमैन्स? quaternary, right? quaternary. Cos. ऑफ Cos. कोर्स इट विल बिकम क्वाटर्नरी. तो आपका यहां पर रिएक्शन में दिस मिथाइल विल रिमेन एज इट इज. एन के साथ यू विल हैव 1 2 3 मिथाइल एंड अ प्लस with a I negative. This is what cos will be formed. Yes. अब ये cos के आगे सिल्वर ऑक्साइड You'll get मॉइस्ट quaternary होना ammonium चाहिए, hydroxide. तो कॉ मिलेगा, क्वाटर्नरी अमोनियम Yes. हाइड्रोक्साइड. तो कौन सा रिएक्शन आगे हीट करने पर मिलेगा? Elimination. हॉफमैन्स एलिमिनेशन. Yes. याद आता है कि नहीं? This is anti-Sadzev, the famous anti-Sadzev elimination, which is also called Hoffman's Hoffman's elimination. elimination. अब हॉफमैन का शॉर्टकट, Just Yeah. opposite of Satesar. हाँ, तो ये वाला अल्फा कार्बन है, ऊपर बीटा है, लेफ्ट में बीटा है और राइट में बीटा है, बट ये तो सिमेट्रिकल है. तो विच Hmm. बीटा ऊपर आएगा. एच विल बी एलिमिनेटेड? ऊपर वाला. ऊपर वाला. ऊपर वाला. एंड दिस विल गेट एलिमिनेटेड एज अ टर्शियरी ट्राइमिथाइलामाइन. Yes. मतलब द आंसर विल बी साइक्लोहेक्सेन विथ अ मिथाइलिन ग्रुप. ऑप्शन डी. First reaction was Hoffman's ammonolysis reaction, which converts a primary amine into a cos. Then the cos with moist silver oxide will give you a quaternary ammonium hydroxide, and on heating will undergo the Hoffman's elimination. Next, number of diastereomeric pairs formed in the product B are. तो कितने pairs बन रहे हैं उसके लिए what's the first reaction? Ring expansion. What mechanism it will follow? ROM. Ring opening होगा. Yeah, like 1 2 3 वाला ना. अरे वो रिंग एक्सपांशन बोलते हैं. रॉम इज रिंग ओपनिंग. रिंग ओपनिंग Oh, अपने sorry. इपॉक्साइड में होता है. Yeah, sorry. ठीक है. सो अगेन दिस इज योर इवन एलिमिनेशन, राइट? Dehydration of Yes. alcohol, and for even you have to follow the U shape. पहले प्रोटोनेशन होगा, you will get a carbocation and you are getting a tertiary carbocation. With plus outside the ring. Yes, and when you have a 5-membered ring with the It will plus outside expand the to ring, 6. you have to think of the ring expansion. अब जिनको अभी भी एक्सपांशन में डाउट है, आई विल जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 2 3 रूल. तो प्लस वाला कार्बन इज 1, उसके बाजू वाला रिंग इज 2 and 3. फिर द नेक्स्ट स्टेप वाज 2 3 तोड़ो 1 3 जोड़ो. 2 3 तोड़ो 1 3 जोड़ो. And after joining 1 3, you will get a 6-membered ring with the sequence plus of the 2 1 3. numbers as 2 1 3. 1 पे 2 मिथाइल है, वो 2 मिथाइल यहाँ पर, and the positive charge will appear on. Always on 2. Always on 2. Very good. So you're getting a 2-degree alkyl carbocation. Can it rearrange further Methyl shift. by undergoing a methyl shift? This is in fact the very famous example जो मैंने आपको डिस्कशन भी किया हुआ है. वेरी फेमस Yes. कॉमन रिंग एक्सपांशन का एग्जाम्पल है ये. टर्शियरी Now मिला. deprotonation. Yes. So protonation, carbocation, rearrangement followed by the
डीप्रोटोनेशन। तो यहां से अगर मैं डीप्रोटोनेट करूं तो आई गेट अ साइक्लिक रिंग विद द डबल बॉन्ड अटैच्ड विद टू मिथाइल ग्रुप्स। ये हो गया मेरा कंपाउंड ए। अब इस कंपाउंड का आगे HBr रिएक्शन will Yes. add according to. Marconicols. But is the MR required here? No, because it's symmetrical. करेक्ट। तो बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई MR कौन कौन से अल्कीन में अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिमेट्रिकल है तो MR की जरूरत ही नहीं है ना। यू विल डायरेक्टली गेट वन कार्बन पे Br। तो दिस इज योर कंपाउंड बी। आ गए बी तक। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स विल बी फॉर्म। एनी गेसेस? 2, right? 2 is wrong. Okay, tell me how many new chiral centers are formed? 2 chiral centers. Two chiral centers. And with two chiral center, how many possible stereoisomers will be there? 4. 4. 4. And the 4 stereoisomers will be RR, SS RS, SS and and SR. SR. Star. Yeah. अब डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? One should be clashing. So the first pair of diastereomer will be RR with RS. Second would be RR with SR, SS with RS and SS with SS with SR. SR। जोड़ी कितनी है डायस्टीरियोमर्स की? 4. 4. 4। तो अब यहां पर अगर आपसे देखो स्टीरियो आइसोमर्स पूछा होता, स्टीरियो आइसोमर्स, आंसर वुड हैव बीन 4. 4। And these are the 4 stereoisomers you can clearly see. Got it? Yeah. अब इसमें मान लो मैंने पूछा इनएंशियोमेरिक पेयर्स कितने हैं? 2. 2 pairs. RR with SS and RS with SR, तो 2 हो गया। Hmm. रेसमिक फॉर्म्स कितने होंगे? 2. वो भी 2 होंगे, RR SS के साथ और RS SR के साथ। करेक्ट। Yes. sir. And these 4 will be corresponding to your Diastereomer. diastereomer का pairs, diastereomers। अरे अंडरस्टूड? Yes. That's it. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन जिसमें रिंग एक्सपांशन भी कवर किया, एडिशन ऑफ HBr हाइड्रोहेलोजनेशन, 2 न्यू कायरल सेंटर जनरेटेड, मतलब 4 स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे जिसमें इनएंशियोमेरिक पेयर्स हमेशा 2 होंगे, हमेशा। एंड डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स विल बी 4। अब इसमें मीजोफॉर्म्स कितने होते हैं? 3. होते ही नहीं है। Yeah, it's 0 because there's no plane of symmetry now. Yes, there's no pause, there's no symmetry. So this covers your entire part about the stereoisomerism wala question. Sir, And हाँ, can you repeat what was mesoforms? सी अगर मान लो आपके पास रिंग है and I would have a Br here and Br here, ठीक है, तो ये भी 2 chiral center है, This is but that with this cis and chiral trans, center right? there is a, हाँ cis trans तो है लेकिन there is also the chirality। तो पॉस है ना यहाँ पर? Yes. समझा? तो पॉस होगा ना तो आपको RS और SR दोनों को एक ही काउंट करना है, एंड दैट इज व्हाई दैट विल बी अ सिमेट्री। Yes, और sir. एक एग्जांपल, तो टार्टरिक एसिड दिया हुआ था COH AHOH AHOH, नीचे भी अगर COH हो तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ मीजो फॉर्म। ये भी मीजो है, सिमेट्री है, और ये भी मीजो है, ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों बता दिया। Yes, sir, got it.
Number of possible constitutional isomers of molecular formula C4H10OR. Constitutional means constitutional was just another name of structural. Structural isomers are also called constitutional isomers. Structural isomers are also called constitutional isomers. Now, to find isomers, I had given you two simple statements to follow. And someone repeat. Separate the Separate the functional group functional and group and remaining as alkyl. Superb. Separate the functional group and remaining carbon as alkyl. Now, first of all, this molecular formula represents Alkane O. which? Yes, so which Alkane organic O. So compounds? alcohol and ether. Superb. So alkane O represents alcohols and ethers. अब alcohol, separate the functional group, OH separate किया. OH. Remaining C4H9. carbon C4H. and butyl has, 4 Four. isomers. तो ये हो गया 4. तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ये रूल फॉलो करो. ईथर में सेपरेट ऑक्सीजन. yeah, Yes. अब 4 को 2 में बांटने के तरीके 2, 2, 2, 3, 2 1. and then 3, 1. 2 2 and 3 1. 2 2 will give 3 me के one 2 रह गए. structure And this will have 2. 2. and this will have 2 n propyl isopropyl. So total 3 हो जाएंगे. So the total isomers will be 7. 7. Simple question था, but just to revise the concept of isomerism. Now let's say इसमें if I ask you the number of isomers including stereoisomers, Add 1. add 1. Because structural तो आपको 7 मिले और stereo किस में possible होगा? Sec-butyl. Sec butyl. Yeah. अब इसका शॉर्टकट था कि out of 4 butyl, sec butyl is always optically active. Yeah. Yes. तो जिनको नहीं पता उनके लिए ब्यूटाइल के 4 स्ट्रक्चर्स हैं and one is optically active which is sec butyl. वैसे पेंटाइल के हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स? 3. नहीं, पेंटाइल के टोटल 8. स्ट्रक्चर्स 8. 8. 8 out of the 3 are optically active. 3. 3 आर ऑप्टिकली एक्टिव. बस, तो आइसोमेरिज्म में अगर आपने इतना याद रख लिया तो कोई भी आइसोमेरिज्म क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, गारंटीड है. तो स्ट्रक्चरल के अलावा अगर मैं स्टीरियो बोलूं तो स्टीरियो यहां पर 2 होंगे एंड देन टोटल विल बी 7 + 2 = 8. 8. 8. क्योंकि स्टीरियो को आपको हाफ करके ऐड करना है. समझा? तो ये पूरा आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन सॉल्व. गॉट इट? Yes, sir. Next, total number of moles of HI consumed by all the reactants will be. What is the funda applicable here? This was that ether wala. Yes. And ether वाले में anisole को आप HI के साथ रिएक्ट करो, You always it get will always phenol. give. Phenol. Correct. Because this bond is never going to break. ये वाला बॉन्ड कभी भी नहीं Partial टूटेगा. double bond. Partial double bond character. यस, तो आपका यही बॉन्ड टूटेगा, फिनॉल एंड मिथाइल का आयोडाइड बन जाएगा. तो फॉर द फर्स्ट केस देयर आर 2 anisole like groups. So How you many use HI will be 2HI. consumed? 2 H. एक बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड टूटा, 2 यहां पर आए. नेक्स्ट 1. ओनली 1. बिकॉज नाउ डाइफिनाइल ईथर का ये दोनों बॉन्ड नहीं टूट सकता, राइट? Yeah. फिर नेक्स्ट में 0. 0. Yeah, 0. ये No, sir, बेंजीन नहीं 2 है ना, परिधि. 2. Okay. हर 6 मेंबर्ड वाला रिंग बेंजीन नहीं होता है. मैं थक गया हूं बोल बोल के, राइट? बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? Yes. यस. और कितने कंज्यूम होंगे? 2. 2. 2. अब यहाँ 3 एनिसोल ग्रुप है. 3. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 टूटेगा. फिर डाइथाइल ईथर में
Two, both दोनों can. टूट जाएंगे और इथाइल आयोडाइड बनेगा। Yeah. अब बेंजाइल अल्कोहल में Yeah, you'll get benzyl iodide because stable carbocation. करेक्ट, तो एक यहां से, और फिनॉल का HI के साथ रिएक्शन नहीं होता है होता। क्या? Not possible. नहीं नो होता। वही तो नो प्रॉब्लम है ना, रिएक्शन। पार्शियल डाइबल नो पार्शियल रिएक्शन। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे एक ही हुआ। ये समझा? अब ऐड कर, 2 + 1 3, 11. 5, 8, 10 and 1 11। Yes. Okay, next one. The structure of product C is, what's the first reaction with NBS? Allylic bromination. तो substitution will Benzyl happen bromide. at Methyl. टोलुइन वाले कार्बन पे Yeah. बेंजाइल ब्रोमाइड, तो A हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट? SN2. And it's a famous named reaction. Williamson synthesis. Correct. RX plus Rona gives you an ether. तो Br उड़ेगा, OCH3 लगेगा, ईथर बन गया। Yes. अब हाइड्रोलिसिस, ईथर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव व्हाट? Alcohol. Yes, 2 moles of alcohol ना, ROR dash Yes. plus HOH in H plus, ROH यहाँ and पे R dash ROH OH. और R dash OH। तो ये वाला तो बेंजाइल ग्रुप है, तो बॉन्ड टूटेगा, मिथाइल के साथ भी टूटेगा, तो दोनों का अल्कोहल बनेगा, एंड दिस आयोडाइड विल रिमेन unaffected, Yeah. so it will be iodide with a benzyl alcohol, option C. Understood? That's it. Next, 2 moles of benzaldehyde with NaOH 18. Canizaro. It's a Cannizzaro reaction. Now what's the role of O18? Tracer technique. Yes, so where this oxygen will be embedded? अल्कोहल में जाएगा या सॉल्ट ऑफ द एसिड में जाएगा? Alcohol. Alcohol. Let's understand the mechanism. तो बेंजल्डिहाइड में, अच्छा, कैनिजारो का मैकेनिज्म का नाम क्या था? Hydride transfer. Hydride transfer mechanism, never forget that word. It's based on the hydride transfer mechanism. So this H of the aldehyde will separate as H negative, which in turn will act as a source of, Nucleophiles. and this will attack the Electrophilic electrophilic carbonyl carbon carbon. along with shift of, Electromagnetic effect. yes. And what you get from the first benzaldehyde is C, H2 single bond O negative, Yeah. plus the other product will be benzene के ऊपर C double bond O, O Na, and this O comes from The base. the base, यानी O18 कहाँ गया? अल्कोहल में गया कि सॉल्ट में Acid. गया? Salt. Salt. पूरा मैकेनिज्म के साथ बताया हुआ है, डायरेक्टली गेस वर्क मत करो। हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. So O18 is a part of salt. So दूसरा एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है दैट्स बेंजाइल अल्कोहल एंड द O18 वाला सॉल्ट.
O18 is not a part of alcohol and it doesn't give you the acid, it gives you the salt. एंड यहाँ पे सॉल्ट का O18 है लेकिन दूसरा आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर तो ए है, समझ में आता है। Yes. ठीक है, those who messed up in this, please write in Canizaro. It's to be remembered that O18 is coming from the base and goes to the salt. Likewise, एक और PYQ बता रहा हूं। If you are given the benzaldehyde 2 moles with NaOD, अब ये D कहाँ जा रहा है? In the alcohol. So the product of this reaction is the benzyl alcohol with OH की जगह OD, एंड मान लो OD. इधर ही O18 कर लेता हो, तो दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ बता दिया मैंने ट्रेसर Salt. टेक्निक का। इट्स COONA और ये O18 है आपका, तो दोनों चीज कहाँ जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस इन योर कैनिजारोस का नोट्स होंगे। इट्स अ हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म विच इज इंपॉर्टेंट। Next, a very well-known PYQ question. Go back for a sec. Thank you, sir. Yeah. Okay. A very common PYQ question. Correct order of nucleophilicity among the following. Now, what is nucleophilicity? Like strength of nucleophile. Correct. Nucleophile ka strength, and that depends on A good Yeah. nucleophile is a strong acid or a weak base. a good nucleophile is a strong acid or a weak base. Leaving group का No, concept no. है वो। Sorry. न्यूक्लियोफाइल का मतलब इट्स अ ल्यूइस बेस, एंड अच्छा ल्यूइस बेस मतलब इट शुड हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ, Lone pair. बस। A very simple concept. Don't mess up in this question. बहुत सिंपल है। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एलपी। अब अवेलेबिलिटी मतलब जितना लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा उतना वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर विल बी एक्टिंग एज अ, Weaker nucleophile. क्लियर है। अब फर्स्ट केस में इज द लोन पेयर लोकलाइज्ड की डीलोकलाइज्ड? Delocalized in resonance. सेकेंड में लोकलाइज्ड की डीलोकलाइज्ड? Localized. थर्ड में लोकलाइज्ड ही है ना, Yes, हाँ, sir. रेजोनेंस आएगा इधर। और लास्ट में Delocalized. डीलोकलाइज्ड। अब ऑफ कोर्स बेटर न्यूक्लियोफाइल 2 और 3 में से होंगे। Yes. अब उनमें हाउ टू डिसाइड? दिस लोन पेयर इज ऑन ऑक्सीजन एटम, Yes. Which is better because it's more electronegative. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब खींच के रखेगा या देने का पावर अच्छा होगा? खींच के रखेगा। खींच के रखेगा. तो इज इट गोइंग टू डोनेट बेटर इजीली? No. No. तो 2 एंड 3 में कौन बेटर? 3. एंड 3 बेटर देन 2 का ऑप्शन एक ही है, Yeah. बराबर। और फोर्थ सबसे वीक क्यों होगा? बिकॉज इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो लोन पेयर पूरा घूम घूम के बहुत ही कम अवेलेबल हो जाएगा, तो फोर्थ विल बी द वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल। इट्स अ वेरी सिंपल वेरी कॉमन PYQ। हाँ, वापस बता रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द ल्यूविस बेस का स्ट्रेंथ विच इज इन टर्न डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर। एंड एक सिंपल लॉजिक दिया कि अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है
and it is available, it will be a better nucleophile. उसमें भी can I say it is inverse to the electronegativity? Yes. कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कम होगा, इसलिए साइनाइड इज अ बेटर वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन द मिथॉक्साइड. करेक्ट. Yes, sir. अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्वेश्चन बना देता हूँ. चार ग्रुप वही है और आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो परिधि तो पहले बोल रही थी. Yes, sir. अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी के लिए एक स्टेटमेंट, अ गुड लिविंग ग्रुप Is a strong Strong acid or a acid. weak base. is a weak conjugate base equivalent to a strong Strong acid. Now, a simple technique to solve this question is, first of all, acid ढूंढ लो चारों के. तो for finding Yeah. the acid, Protonated. protonated, first is acetic acid, next is methanol, Methanol. HCl. HCN, and So 3H. benzene sulfonic acid with toluene substituted group. अब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? Acidic acid. नो. Sulfonic So acids sulfonic are acid, right? bachas Because of Yeah. sulfuric they maintain acid. Doesn't it have electrons. EDG nature? Though there is EDG nature, but when you talk about strong acid, sulfonic acids are ranked much stronger than the carboxylic acid. Much, much, much. Million times stronger होते हैं भाई. Oh, okay. Okay? So ये So आपका the strongest फर्स्ट हो जाएगा. sir, so the strongest हाँ. acid is always sulfonic acid. हाँ. कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग. Formic acid से भी strong. फॉर्मिक एसिड से भी, यस. सल्फोनिक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड आता है ना, तो हाँ सल्फोनिक sir, उससे हाँ. भी स्ट्रॉन्ग है. Okay sir. अब बाकी तीनों में इट्स इजी. अब एसिडिक एसिड, अल्कोहल और HCN में कौन? Acetic acid. Acetic acid. नो डाउट अबाउट दैट. और मिथेनॉल और HCN में अल्कोहल्स का एसिड स्ट्रेंथ कैसा रहता है? इज इट वेरी हाई और वेरी वेरी लो? Very low. Very low. तो फिर कौन बेटर एसिड होगा? CN. HCN. HCl. डाउट ही नहीं है. और यहाँ पे 4 हो जाएगा. करेक्ट. Yes. Yes. अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी का आंसर अगर मुझे ये 1 2 3 4 के हिसाब से प्लेस करना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी द बेस्ट लिविंग ग्रुप. 4. Yes. मतलब ये वाले नंबरिंग के हिसाब से 4 बेटर हुआ. फिर 1. 1, फिर 3. 3 Two. And एंड then 2. 2. So, हाँ. suppose you had like benzene sulfonic acid, and then on ortho para, suppose you have strong EDGs, like you have methyl, 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 and then on if you have benzoic acid, and then again on ortho meta para you have nitro, which would be stronger. See, that type of comparison will never be asked. बिकॉज इसमें Okay. पीके वैल्यूज के अलावा आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. Okay. तो इतना एक्सटेंसिव थॉट प्रोसेस नहीं करना है आपको. अगर फैमिली की बात बोलूं तो मैंने आपको एसिड स्ट्रेंथ में क्या बोला हुआ है? SO3H अभी सबसे Sulfonic स्ट्रॉन्ग, more than carboxylic, yeah. या और कार्बोक्सिलिक के बाद आएगा फिनॉल, Phenol, and then alcohol. फिनॉल के बाद आएगा वाटर, और वाटर से भी वीकर है अल्कोहल. Alcohol. दैट Alcohol, इज द yeah. जनरल ऑर्डर विच आई हैव गिवन, राइट? अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट का जो इफेक्ट है उसमें एकदम से आप वैसा कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल रिक्वायर द पीके वैल्यूज. Okay. अमंग द फैमिली ऑफ एसिड्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्थो मेटा पैरा दी है, वो कंपैरिजन हम आरआई ट्रिक से कर सकते हैं.
Okay. बट आप जो बोल रहे हो ना, इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर विदाउट द पीके. Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट. इनॉल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कीटो इनॉल Tautomerism. टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म का एक जनरल कंडीशन क्या दिया था? A double ये bond डबल A, बॉन्ड single bond सिंगल C बॉन्ड पे सी पे atom. और एटम. एंड एच विल माइग्रेट टू. A, right? बी. हाँ, एच विल माइग्रेट टू ए एंड डबल विल चेंज टू. Single and single become doubles. तो जिनको टॉटोमेरिज्म नहीं पता है, प्लीज रिमेंबर, एटलीस्ट ये कंडीशन याद रख लो. ठीक है. अब यहां पर आप देखो तो देर इज अ कीटो ग्रुप और उसके अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है Yes. and will undergo tautomerism, and after it undergoes tautomerism it's going to give you some important compound. Tropolone. करेक्ट. प्रोपोलोन देने वाला है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कीटो ग्रुप एज इट इज रहेगा. दिस डबल बॉन्ड O विल चेंज टू OH एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड इट्स अ फेमस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोलोन. सेकेंड वाले में भी दिस H विल गेट इन्वॉल्व इन द माइग्रेशन, चला जाएगा यहाँ पर एंड विल गिव. क्या देगा ये? Tropone. ये ट्रोपोन है. So wouldn't that also convert to OH? विच वन? नहीं ना, The- बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है. दिस डबल बॉन्ड कार्बन का H कांट माइग्रेट. दिस C हैज टू बी सिंगल बॉन्डेड, sp3 होना चाहिए माइग्रेशन के लिए. No, then where did one oxygen go? ओ सॉरी, ये OH मैंने मिस कर दिया. हाँ, yeah, that's हाँ, it. सॉरी सॉरी सॉरी. So then that is not tropone, na? नहीं, ट्रोपोन नहीं, सॉरी. और यहाँ पे इस तरह से OH आ जाएगा. अब इनॉल का कंटेंट मतलब इट विल बी डिसाइडेड बाय Stability. स्टेबिलिटी. अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? Tropolone. अब फर्स्ट और सेकंड में आप देखोगे तो OH की पोजीशनिंग अलग है. जब डबल बॉन्ड O एंड OH आजू बाजू है, कैन समथिंग हैपन? Hydrogen bonding. इंट्रामोलिकुलर Intramolecular हाइड्रोजन hydrogen बॉन्डिंग. bonding. सुपर्ब. तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है. तो ट्रोपोलन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर, और लास्ट वाला तो पूरा रेजोनेंस में नहीं है. मतलब जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही आपका इनॉल कंटेंट का ऑर्डर है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 1, 1 2, 2 3. 3. सो आइसोमेरिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट टॉटोमेरिज्म गेट्स कवर्ड हियर. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 should be Directly decided by. proportional to stability of carbocation. तो ये तोड़, what carbocation have you got? Degree alkyl. 2 degree alkyl. Next. Primary alkyl in resonance. And next. Also primary alkyl, but in good resonance. That is bad resonance. This is very very good resonance. आज ही बताया. प्लस एंड ऑक्सीजन विथ अ लोन पेयर सिग्मा से अगर ज्वाइंड है तो इट्स अ वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन. व्हाट कैन यू कमेंट ऑन द सेकंड वन? It is case of bad resonance because it will develop plus on oxygen. रिमेंबर, बैड रेजो, एक गुड रेजोनेंस हो गया आपका थर्ड वाला. और गुड वर्सेस बैड देखो, दोनों एग्जांपल साथ में आ गए. तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2 पे प्लस, वेरी बैड. बिकॉज जब पाई यहां पर डीलोकलाइज करेगा, इट विल चेंज टू CH3, C पे O प्लस, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2.
और मैंने बताया था कि रेजोनेटिंग फॉर्म्स में ऑक्सीजन विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड अ प्लस इज वेरी बैड। लास्ट सेशन में डिस्कस किया हमने ये। Yeah. ठीक है, तो ये बैड रेजोनेंस मतलब ये कार्बोकटाइन तो घटिया कार्बोकटाइन, मतलब वाह के कैटेगरी का है। तो सबसे बेस्ट तो थर्ड है, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, आंसर विल बी सी। गॉट इट? Yes. Yes, sir. Incomplete octet and plus on more electronegative is also very bad. Next, phenol with NaOH CO2 followed by Can H one go back? plus. I was writing. I'll share the slides with you all. Okay, sir. Okay. Phenol with NaOH CO2 followed by H plus. What is X? Is it salicylic acid? It's a famous school-based reaction. See, you can't forget the named reactions. ये तो आपके बहुत डायरेक्ट वाले आंसर्स हैं. Okay. Now the salicylic acid is treated with methanol and H plus. कौन सा रिएक्शन होगा? Esterification ऊपर में. तो एसिड वाला ग्रुप will convert to ester वाला ग्रुप, because acid and alcohol gives you ester and water, तो OH ऐसे ही रहेगा, and CO, the OH from the acid, H from And the H from the alcohol alcohol. What? will eliminate to form water and will give COCH3. यहां पर भी आपको ट्रेसर टेक्निक जैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मिथेनॉल O18 है, कहाँ गया ये, एस्टर में के पानी में, Ester में. Ester. Yes, sir. है ना? तो दिस इज व्हाट द ट्रेसर टेक्निक वाज अबाउट. Okay, now this particular compound is called methyl salicylate. Methyl salicylic acid का ester is called salicylate, which is in turn the oil of wintergreen compound. ठीक है, ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं. एंड बॉटम पे देर इज असाइल क्लोराइड रिएक्टेड. अभी Yeah, so असाइल क्लोराइड किसके acetylation. साथ? यस, इट्स पैन का असाइलेशन. और पैन मतलब फिनॉल, एनिलीन और नाइट्रो का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं होता है. Because the lone pair इंस्टेड, gets coordinated to form a compound. करेक्ट, इंस्टेड OH ऑफ द H of the OH and H of the aniline का असाइलेशन होता है. मतलब रिंग पे OCOCH3 बन जाएगा, Yeah. एंड यहाँ पे COH वैसे का वैसा. एंड दिस इज अ फेमस Aspirin. एस्पिरिन, अनाल जैसे एक एंटीपायरेटिक. तो ये तो रिएक्शन पता Yeah. ही है. आंसर बी हो गया. नेक्स्ट, व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? हाउ डू यू डिसाइड दिस? So it will generate electrophiles. So electron density जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे Br will get substituted. तो कौन से रिंग पे होगा, फर्स्ट या सेकंड? First one because aniline का activating. यस, तो मैंने आपको ये क्या बताया था, अगर आपका अमाइड जैसा फंक्शनल ग्रुप है तो इसको तोड़ दो. अब ये एनिलीन जैसा हो गया, Yeah. और ये NSCI का जैसा फिनोन हो गया. तो Hmm. फर्स्ट रिंग एक्टिवेटिंग है, सेकेंड रिंग डीएक्टिवेटिंग है. तो ब्रोमिनेशन विल हैपन इन द फर्स्ट रिंग एट द, Para position. सो आंसर इज ए. ये भी PYQ है. How many of the following are soluble in aqueous NaHCO3? Now, what was the fundamental concept of this NaHCO3? कौन रिएक्ट कर Acids. सकता है? ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड?
and 2,4-dinitrophenol and picric acid. करेक्ट। तो ये नोट लिखवाया हुआ है। एंड विल सल्फोनिक एसिड रिएक्ट? Yes, because it's ऑफ way कोर्स। stronger than carboxylic. तो फर्स्ट वाला करेगा बिकॉज इट्स सल्फोनिक एसिड। सेकंड, No, it's an alcohol. इट्स अ बेंजाइल अल्कोहल। थर्ड, कोई No. एसिडिक ग्रुप ही नहीं है। फोर्थ Yes. इज अ फेमस 2,4 डाइनाइट्रो। Yes. फिफ्थ, Yeah. यस। सिक्स्थ, No. नो। कितने? 3. तीन। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, NaHCO3 will be possible reaction possible for COH SO3H and the di or trinitrophenol, जिसका पिक्रिक एसिड फेमस एग्जांपल है। ठीक है, तो इतना ही समरी याद रख लो बस। नेक्स्ट इज dichromate will affect which functional group Secondary alcohol. and will oxidize to? Ketone. And then you get beta keto acid, so immediate decarboxylation. वेरी गुड। तो सबसे पहले ए वाला कंपाउंड जो है ना, वो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना रहा है। एंड जैसे ही कीटोन आपका बीटा पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमेंबर अ स्टेटमेंट, बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोज इमीडिएट डीकार्बोक्सिलेशन एंड COH निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ कीटो कंपाउंड विच इज ऑप्शन बी, इमीडिएट डीकार्बोक्सिलेशन कॉन्सेप्ट। बाय द वे, ये इमीडिएट डीकार्बोक्सिलेशन और एक जगह होता है। Yeah, and dicarboxyl, geminal dicarboxyl. जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर दो COH ऑन द सेम कार्बन है तो उसको हीट भी करने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट, मान लो अगर हीट दिया है तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएट CO2 निकाल दो, डीकार्बोक्सिलेशन, एंड विल गिव Monocarboxylic. दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। तो ये दो कॉन्सेप्ट है इमीडिएट डीकार्बोक्सिलेशन का, एक बीटा कीटो एसिड, दूसरा जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेवर फॉरगेट दिस। ओके, Sir, which of the in the following? last one, if it was KMnO4 instead of potassium dichromate, then too he would get the same answer now. Yes, yes. Dichromate या KMnO4 are the और same सर और oxidizing कोई सर agents. और दो तीन भी थे ना, लाइक जो इमीडिएट अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन और अल्डिहाइड में, वो और एक भी था ना सर, जोन्स रिएजेंट था, वो वो प्राइमरी अल्कोहल के लिए CrO3 वाला। स्पेसिफिक है। हाँ, सो मतलब ये दो ही ना, CrO3 मतलब भी मोस्टली सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है इनटू कीटोन। कीटोन। यस, सो फिर सैरेट बाकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। सो तो फिर सैरेट को सैरेट करके भी मतलब कुछ था ना, आई गेस। यस, सैरेट, कोरीज, PCC, PDC, ये सब माइल्ड है, जो प्राइमरी अल्कोहल को पायरिडीन। अल्डिहाइड पे और सेकेंडरी हाँ, अल्कोहल को कीटोन पे रोक देगा। ओके सर, थैंक यू। Which of the following ketones has the largest equilibrium constant for the addition of water? When ketones are added with water, what does it give? Geminal diol. And are they stable? No. Will lose water molecules. So, but तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, लेकिन देर was some ketones जिसका हाइड्रेशन करने पर we get stable compound. There was an aldehyde that was chloral. Yes, मतलब कीटोन बोला यानी कार्बोनाइल ग्रुप। तो क्लोरल Yeah. के लिए CCl3 CHO will form a very stable hydrate because ये Yes, पानी में because of ऐड करने पर, intramolecular H bond. यस, तो आपके पास 3 क्लोरीन है,
और फिर CH OH है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका हाइड्रेट बहुत ही ज्यादा स्टेबल है एंड इट विल नॉट गिव बैक द क्लोरल। करेक्ट। Yes, sir. अब लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एडिशन ऑफ वाटर in turn is directly related with reactivity towards NAR। नार का जो रिएक्टिविटी है वही फॉलो करना है। अब ये सब बेंजोफिनोन्स है एंड So दे आर C, सब्स्टिट्यूटेड विथ द EDGs और EWGs, and which are better for NAR reactivity EWG is better. because it will make the गरीब को और गरीब। D. So आंसर है C। समझा? ये Yes, sir. क्वेश्चन आपका नार रिएक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड है, नथिंग डिफरेंट, बिकॉज जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, will attack the electrophilic carbon, shift of the pi electron happens, and it will undergo the NAR reaction. Consider the following sequence of reaction. एक अननोन कंपाउंड XOH माइनस से Y और प्रोपियोनेट दे रहा है, और जो Y है दैट्स KMnO4OH माइनस हाइड्रोलिसिस से थैलिक एसिड का मेटा आइसोमर दे रहा है। Yeah. अब कंपाउंड X क्या है? You can go reverse, so sir. यू हैव टू गो रिवर्स। इनफैक्ट रिवर्स जाओगे तो KMnO4 से ये एसिड कैसे मिल Primary सकता है? alcohol. प्राइमरी अल्कोहल। और व्हाट आर द अदर वेज? डू यू रिमेंबर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन विथ KMnO4? Oh yeah, any टोलुइन विथ alkyl KM, benzene which has benzyl, like H Irrespective, will give yeah. benzoic acid. हाँ याद आया। Yeah. Yes. तो यहाँ पे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इट कैन बी अल्काइल बेंजीन, इट कैन बी अ प्राइमरी अल्कोहल, it can be like any length of the carbon chain, it can be a styrene compound। मतलब रिवर्स में जाने का प्रॉब्लम क्या है, मल्टीपल चीजें आ सकती है। Then you तो फिर use the व्हाट इज द अदर वे? options. यस, यूज द ऑप्शंस। अब सारे ऑप्शन में व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप यू सी? Ester. मतलब इतना तो क्लियर है कि एक्स एक एस्टर है। अब एस्टर OH माइनस के साथ अंडरगोज व्हाट? एस्टर विथ OH माइनस अंडरगोज, Neutralization. नहीं, एस्टर एसिड थोड़ी है। उल्टा एस्टर, हाँ, I'm not sure sir, उल्टा एस्टर। नहीं, अरे एस्टर हाइड्रोलाइज करके क्या देता है? But isn't that an acidic medium and not basic? हाँ, तो बेसिक मीडियम में व्हाट्स द चेंज? इंस्टेड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड यू विल गेट इट्स Oh, Salt. sorry. अरे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस रिएक्शन भाई। अल्कलाइन Yeah. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर produces sodium Hmm. salt of fatty acids which are called Yeah. soaps, and the reaction is called Saponification. अच्छा saponification of तो ester। हुआ सेकेंड ये? ऑर्डर रिएक्शन। यस, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का फंडा। Sodium stearate. NaOH, NaOH नहीं दिया तो ऐसा भूल नहीं जाने का, OH माइनस NaOH होता है। से यू हैव टू ऐड द मिसिंग पीसेस। तो जब तक आप वो मिसिंग पीस ऐड नहीं करोगे, जैसे आपको शायद यहाँ पे स्ट्राइक ही नहीं हुआ, अरे NaOH नहीं दिया है, अगर मैं NaOH लिखता तो फटाक से आप सब बोलते हैं सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। अब खाली OH माइनस दिया तो कैसे स्ट्राइक नहीं होता है? फर्क कुछ नहीं है, राइट? Yes, sir. अब मुझे बताओ कि सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर करने के बाद जो सॉल्ट बन रहा है that is always going to be from the R of the ester, and the R dash will always form Alcohols. alcohol।
अब आपको एक प्रोडक्ट तो दे दिया था जिसमें प्रोपियोनेट कंफर्म है, मतलब दिस सॉल्ट इज गोइंग टू बी प्रोपियोनेट का सॉल्ट, तो आर इज गोइंग टू बी इथाइल। फिक्स हो गया। अब ऐसा कौन सा एस्टर है ऑप्शन में जिसका A. सी डबल बॉन्ड ओ इथाइल के साथ लिंक्ड है? पहला है, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, क्योंकि वो मिथाइल से लिंक्ड है। Yes. मतलब दो तो रूल आउट कर दिए आपने। अब जब इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट अ सॉल्ट प्रोपियोनेट एंड अ बेंजाइल अल्कोहल, Yes. एंड यहां पर भी सॉल्ट मिलेगा, लेकिन यू आर गेटिंग अ Phenol. फिनॉल। बी। B. तो Yes. फिनॉल का ऑक्सीडेशन तो आपको एसिड ग्रुप नहीं दे सकता ना, Yes. तो ए भी रूल्ड आउट है। दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। समझा? Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पे ट्रिक ये है कि यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द कॉमन फंक्शनल ग्रुप, एस्टर, अप्लाई द रिएक्शन विच इज एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, फॉर्म द प्रोडक्ट्स एंड वन प्रोडक्ट में से आर ढूंढ, ऑप्शन रूल आउट कर, और फिर आगे वाला जो हिंट है उससे दो में से एक और रूल आउट कर, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। व्हाट्स अ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन स्ट्राइक होता है? अल्डोल। यस, अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन का एक खास प्रोडक्ट में ऑब्जर्वेशन था। व्हाट डज इट गिव? Alpha beta अल्फा unsaturated. बीटा। एंड इफ यू नो दैट, द आंसर इज C. दैट्स इट। आपको सॉल्व भी नहीं करना है ये, क्योंकि एक ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है और वो है ऑप्शन सी, तो आंसर यही है। हम्म। इनफैक्ट अगर ये प्रोडक्ट दिया होता और रिएक्टेंट ढूंढना होता, व्हाट वुड बी डन? Just add water. एंड वाटर ऐड करने का तरीका क्या था? अल्फा को 2 H मिलता है और बीटा को डबल बॉन्डेड O. सो अल्फा को 2H मिलता है और बीटा को ऑक्सीजन मिलता है। अब ब्रेक कर, यू हैव गॉट योर रिएक्टेंट्स बैक। तो मैंने अल्डोल के दोनों तरफ के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। नंबर ऑफ ग्रेगनार्ड कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन आर। तो ग्रेगनार्ड कितना कंज्यूम हो सकता है? फिनॉल ग्रेगनार्ड से रिएक्ट करता है? नहीं. श्योर? Oh no, it will give ऑलवेज hydrocarbon. रिमेंबर It will give ग्रेगनार्ड का hydrocarbon. स्टेटमेंट। चल मैं वापस रिपीट करता हूँ, ग्रेगनार्ड रिएजेंट If comes in contact with any H containing compound. is a source of Nucleophiles. carbonine, which will act as a nucleophile as well as a base. या। And if it comes in contact with any H containing acidic compound, it will It form will a, give हाइड्रोकार्बन। hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन। तो फिनॉल से तो ऑफ कोर्स रिएक्ट करता है, एक मोल करेगा कि नहीं? Yes. यस। असाइल क्लोराइड के साथ, Yeah. and acyl chloride and grignard will first give कीटोन। कीटोन। यस, एंड कीटोन फर्दर रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड से। Yeah, to give tertiary alcohol. तो कितना मोल कंज्यूम हुआ? 2. 2. टू। 2। फिर कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड, Yes, again 2 moles. 1 मोल। Oh, इट्स sorry. ऑलरेडी अ कीटोन ना, Yes. तो 1 मोल ना। Yeah. यस। एंड क्या इपॉक्साइड ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट Epoxy. करता है? Yes. 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 यस, क्योंकि यहाँ पे आर नेगेटिव MgX प्लस ये अटैक करेगा, रिंग को ओपन करेगा, दिस इज द रॉम मैकेनिज्म। तो यहां पर भी 1 मोल करेगा, तो आंसर हो गया 5।
अमंग द कंपाउंड्स बेंजोइक एसिड का एसिडिटी स्ट्रेंथ, वन कॉन्सेप्ट टू अप्लाई शुड नॉट बी फॉरगॉटन, Right. So rough. नॉट द Ah, आर आई ट्रेक। आर आई So से rough. पहले बेंजोइक एसिड में सर सोचने का, एंड सर का yeah. डायरेक्ट Or कंक्लूजन क्या so, है? Ortho or so substituted is substituted. best. इज बेस्ट। तो Yeah. फोर्थ और सेकंड दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, उनमें बेस्ट बेटर कौन? Fourth, नहीं, fourth क्योंकि दो रहा ऑर्थो है ना, हाँ, तो fourth. Yeah. इधर सर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये सुनो, Yeah. Yeah. फोर्थ इज बेटर देन टू, एंड वन एंड थ्री में हाउ डू यू डिसाइड? EWG. All right. आर आई ट्रेक, डोंट से डब्ल्यू जी। एंड ओ Sorry. एच मतलब फिनॉल शोज, Plus R minus R. Minus. और प्लस आर एसिड के स्ट्रेंथ को, घटाता है. तो वन इज बेटर देन थ्री, Yes. Yeah. हेंस द आंसर इज डी। ठीक है, तो सर इफेक्ट स्ट्राइक नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। बस भी रिवाइज करा दो ना सर। क्या? सिप सिप। सिप आगे आने वाले हैं, और सिप, सी सर मैंने आपको क्या बोला था, सर मेक्स द एसिड स्ट्रॉन्ग, है ना, आपके कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग करा रहा यस हूं। सर। तो सर इज मेकिंग द कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, सर इफेक्ट। सिप इफेक्ट, बेस को वीक करता एनिलीन है. के कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेसिस होते हैं वो वीक हो जाएंगे। करेक्ट, जैसे अगर एनिलीन है और आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप दे दिया ऑर्थो मेटा पैरा पे, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप? बेसिक स्ट्रेंथ, You'll put ortho last. Also at the weakest. ऑर्थो लास्ट कर दोगे। अब बाकी मेटा और Then you do पैरा के लिए RI. RI. आर आई, तो मेटा विथ रिस्पेक्ट टू मिथॉक्सी हैज माइनस आई, Minus I. पैरा पे प्लस आर माइनस Plus आई। R. Yeah. अब विच इज बेटर, मेटा या पैरा? Para. बिकॉज एडीजी इंक्रीजेस द बेसिक Increases स्ट्रेंथ, basic पीएमओ। strength. ये हो गया Also, सिप SIP is only इफेक्ट। for aniline substituted, right? ऑफ कोर्स, सर इज फॉर बेंजोइक एसिड ओनली, सिप इज फॉर एनिलीन ओनली। सब जगह सर इफेक्ट लगाना नहीं, फिनॉल में सर नहीं लगता है, फिनॉल में सर नहीं लगता है, बेंजोइक एसिड में ही सर लगता है। ओके। Yes, sir. अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, इफ यू हैव, N and With dimethyl. ortho पे methyl again, both of them. व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? This shows sir, not sip. So this is best. वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, Plane को rotate करता है. करेक्ट। यहाँ पर ये प्लेन रोटेशन मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे सर नहीं, सॉरी सिप नहीं, सर लगता है। ठीक है, तो हो गया सर और सिप रिवाइज। नंबर ऑफ कंपाउंड विच अंडरगो स्टेबल हाइड्रेट फॉर्मेशन, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रेट स्टेबल होता है? Chlorine. क्लोरल तो है ही। क्लोरल के अलावा फर्स्ट वाला कंपाउंड जो निन हाइड्रीन है, कहाँ पड़ा है निन हाइड्रीन? टेस्ट फॉर So proteins and amino acids in biomolecules. प्रोटीन्स अमीनो एसिड का टेस्ट में निनहाइड्रीन टेस्ट है, ये निनहाइड्रीन का स्ट्रक्चर है। अब निनहाइड्रीन में ये जो बीच का कीटो ग्रुप है, अगर मैं इसको हाइड्रेट बनाऊं, डू यू सी समथिंग क्लोरल के जैसा? Intramolecular That's bond. one. तो आपके डेटाबेस में, आपके सिनॉप्सिस में क्लोरल के अलावा निनहाइड्रीन ऐड किया जाए फॉर स्टेबल हाइड्रेट। एंड थर्ड, ये वाला भी स्टेबल हाइड्रेट बनाता है, क्योंकि इसमें अगर आपके पास दो OH ग्रुप आ जाते हैं तो ये भी आपस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनाएगा।
और दूसरी बात, ये वाला जो कार्बन sp2 है, ये हाइड्रेट बनने की वजह से sp3 हो जाता है। तो इवन द साइक्लोप्रोपेनोन फॉर्म्स द स्टेबल हाइड्रेट। ये तीन ही एग्जाम्पल है स्टेबल हाइड्रेट के। मैंने क्लोरल तो दिया था आपको, एड ऑन में क्लोरल प्लस निनहाइड्रीन प्लस साइक्लोप्रोपेन। अगर पेपर टफ निकालना होगा तो ये दो एग्जाम्पल में से कुछ आ सकता है। So, हम्म what was like the reason? Like, what does sp2 changing to sp3 does that? How does that help? सो बेसिकली यहाँ पर जब sp2 रहता है ना, तो इफ आई चेंज दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, अ पोलराइज्ड फॉर्म, तो ये Yeah. वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली अ sp3 कार्बन रिलेटेड स्ट्रक्चर। एंड जब इस पे दो OH ग्रुप आ जाएंगे ना, द sp3 कार्बन एक्चुअली मेक्स इट वेरी स्टेबल, बिकॉज ये वाला पोलराइज्ड फॉर्म जो है वो इस पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। Okay. Okay. वो रीजन है। So, sir, when there is a question for stable hydrate formation, like what should be the thought process? ओनली 3 एग्जाम्पल्स रिमेंबर, इससे अलावा नहीं आएगा, गारंटीड है। इनफैक्ट आपके नीट के सिलेबस में खाली क्लोरल है। Okay, sir. ओके, थॉट प्रोसेस इसमें सिंपल है, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो निन हाइड्रोजन और क्लोरल दोनों के रीजन सेम है, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्ड। यहाँ पे एक बेटर रीजन इसका ये है कि sp3 की वजह से ये पोलराइज फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। और इन 3 एग्जाम्पल्स के अलावा आंसर, सॉरी, आपको नहीं आएगा। So, इसका आंसर 3 है। हम्म in the last one also, when the ketone will get converted to a general diol, that हम्म time also the carbon will change to sp3, no? So then, like, how is it not? बट ये ओपन चेन में है। ओपन So चेन में उसका फर्क नहीं पड़ा, ओपन चेन में तो sp2 भी स्टेबल ही है ना। if you had cyclohexanone, then ओके, साइक्लोहेक्सेनोन में ऑलरेडी रिंग स्ट्रेन कम है, तो ये स्टेबल ही है कीटोन। okay, प्रॉब्लम क्या है, ये 3 कार्बन रिंग जो है ना, बहुत ही ज्यादा lot अनस्टेबल of है। Bayer strain, yeah. Unstable. हाँ, और वो बेयर स्ट्रेन कम होता है जब ये डायोल बना देता है, इसलिए इसका Okay, डायोल स्टेबल है, बाकी सब कॉन्सेप्ट में नहीं बैठेगा ये। okay, okay, thank you. So to summarize, stable hydrate concept is only for chloral, ninhydrine and cyclopropanone. That's it. Full stop. ज्यादा सोचने का नहीं। Okay. Product P3 is, what's the first compound and the reaction? Amide, Amide and NaOBr. HBD. Happy birthday reaction. और हैप्पी बर्थडे का शॉर्टकट क्या है? just get rid of the Primary carbonyl. amine. तो ये निकल जाएगा, Yes, प्राइमरी अमाइन बनेगा। अब प्राइमरी अमाइन विद क्लोरोफॉर्म KOH, alkyl isocyanate. which No, no, reaction? this is carbylamine test. Yes. Ulta. एंड आइसोसाइनाइड का H2Ni। Gives you 2-degree amine. Yeah. परफेक्ट, तो आंसर तो हो गया क्लियर, बिकॉज दिस विल फॉर्म Yes, RNH CH3। HR रिएक्शन बताया हुआ है, Yes. yes. तो आंसर इज 2 डिग्री अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कैन यू स्पॉट थर्ड एंड फोर्थ बेसिस? Third one is amidine, fourth one is guanidine. एंड दोनों में, Guanidine is a better base. Guanidine is more basic. तो ऑफ कोर्स अगर ये बेसिस दिखे तो मैंने आपको बोला हुआ है, याद रख लो, ग्वानिडीन तो बाप ऑफ बेसिस है। तो 4 इज ऑफ कोर्स द बेस्ट बेस, देन 3। अब 1 एंड 2 में कैसे डिसाइड? Lone pair, like in conjugation. Conjugation. किधर है कॉन्जुगेशन में? सेकंड में ऑन द Oh, डबल sorry, बॉन्ड है, there's कहाँ a on the कॉन्जुगेशन? double Local. bond. Sorry, sorry. लोन पेयर ऑन द डबल बॉन्ड इज बेटर या ऑन द सिंगल बॉन्ड इज बेटर? Single bond, right? Then we'll be able to Single give bond, it no? easily. बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आसानी से देगा ना। और Yeah. यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो डिफिकल्टी से देगा। 1 इज बेटर देन 2, 4 3 1 2। समझता है?
Most acidic species. All are ammonium or anilinium ions. N प्लस वाले ग्रुप से. अब अमोनियम में एसिड स्ट्रेंथ निकालना डिफिकल्ट है. व्हाट इज अदर वे राउंड यू कैन सॉल्व? Strongest acid will be weakest conjugate base. और सबके बेस ढूंढने के लिए क्या करोगे? H निकालना. सुपर. पहला वाला स्ट्रक्चर आपका फेमस कंपाउंड बन गया. नाम बोलो. Is it pyrrole? फर्स्ट वन Picoline पाइरोल है is कि that? सेकेंड वन पाइरोल है? Second one. सेकेंड पाइरोल है. ये पाइरोल का सेचुरेटेड फॉर्म है. फिर थर्ड में H निकालोगे तो यू आर गेटिंग अ फेमस कंपाउंड ऑफ Pyridine. पाइरिडीन, जिसका लोन पेयर इज Localized. लोकलाइज्ड. एंड लास्टली pyridine but with a NME2, है ना? Yes. अब सबसे वीकेस्ट बेस वो होगा जिसका लोन पेयर अवेलेबल Yes. नहीं होगा. नहीं होगा. So इज द लोन pyrrole. पेयर अवेलेबल फॉर द फर्स्ट वन? Yes. ऑफ कोर्स, वेरी मच. Yeah. सेकेंड में प्रॉब्लम है क्योंकि इट इज इन It's कॉन्जुगेशन. involved in the resonance. थर्ड में It's localized. और फोर्थ में. Pyridine वाला nitrogen is localized, but ऊपर वाला is delocalized. हाँ. अब नाइट्रोजन अगर रिंग के अंदर है तो उसका अवेलेबिलिटी और कम या बेटर? कम. कम. इसलिए सबसे वीकेस्ट बेस तो आपका पाइरोल हो गया. अंडरस्टूड. Yes, sir. Last question. Correct order of increasing basicity among the following amines is. पहले तो एलिफेटिक और अरोमेटिक में कौन अच्छा बेस? Aliphatic. Aliphatic. तो ऑप्शन सी और डी नहीं, सी रूल्ड आउट है. अरोमेटिक में नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एंड मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड, बेटर कौन? Methoxy. Methoxy. बिकॉज ईडीजी और प्लस आर है. Yeah. तो आंसर बोलो. D. डी. Sir, और इसी not का सिप इफेक्ट में मैंने EDG, बता right? दिया. हाँ. Not Sorry? EDG, ना OCH3. Yeah. ईडीजी क्योंकि That's प्लस what. आर बोलूंगा ना. सिर्फ पहले आप हमेशा प्लस आर को देखोगे, इसलिए वो डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा. बाद में अगर आर से नहीं काम बनता है तो आई सोचेंगे तो ईडब्ल्यूजी बोलेंगे. Hmm. In fact, Okay. methoxy on the benzene is EDG as well as EWG. It's EDG due to resonance, EWG due to inductive effect. Inductive. Inductive. That's what the RI trick was. So aliphatic is the strongest base now. Yes. और एलिफेटिक में भी 213 का ऑर्डर जनरली फॉलो होता है, एक्सेप्ट But this one is methyl, so it would be 231. 231. नहीं 231 जनरल ऑर्डर था. मीथाइल के लिए 213. 213 था, 213. Yeah. है ना, when R is methyl. Okay, Yes, sir. that's it. So I've completed the majority of the important questions and revised the major important concepts related to stereo, roadmap sequences, few reaction, tracer technique, acid strength, base strength, surge, SIP, RHI concepts. ठीक है. अब किसी को कुछ डाउट्स हैं? Yes, I have So, doubts. I have Hmm. doubts. बोलो. I have not an organic though. I just have a problem. Like, can you explain like what is the relation of exchange energy with stability in D block? ओके, एक मिनट.